morning students, welcome to the class. Students, today we are going to do the numericals based on the mirror formula. A derivation of mirror formula and derivation of the magnification is done with you by Pooja ma'am. Today I am going to take up the most difficult part what students feel in this chapter is solving the numericals. Most of the times it has been seen that the students find problems while solving the numericals. It is not at all difficult, children. Please listen to it carefully with the complete understanding of the sign conventions, with the complete understanding of the application of the mirror formula and little bit of tricks. You people can solve these numericals very easily. So today I am going to tell you the tricks as well as how to apply these tricks while applying the mirror formula. So you have done mirror formula, just a little recap of the mirror formula, and that is 1 upon f is equal to 1 upon u plus 1 upon v, where f stands for, it is focal length, and u stands for object distance, and v stands for image distance. So this is your mirror formula. ये आपने पढ़ा है mirror formula. 1 upon f is equal to 1 upon u plus 1 upon v, and this mirror formula is applicable for both concave as well as convex mirror. Pooja ma'am has already derived this formula for both concave as well as concave mirror for you, and you have seen that in both the cases the formula remains the same. It is 1 upon f is equal to 1 upon u plus 1 upon v. Now how to apply the sign conventions? मैंने भी पहले आपको ये बता दिया है, पूजा मैम ने भी आपको जब डेरिवेशन कराई थी तो बताया था. So let us make this number line. ठीक है, ये ट्रिक है. This is just a trick. Take this place as origin. आपको पता है all the distances on the right hand side of 0 origin are taken as positive and all the distances on the left hand side are taken as negative. Now for concave mirror, let us say मैंने क्या ले लिया है, concave mirror. concave mirror लिया तो इसमें ये आपका origin पे रख दिया हमने पोल. क्या रखा? पोल. And remember one thing, कि ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर. सो ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे होगा. जब ऑब्जेक्ट लेफ्ट हैंड साइड पे होगा तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा क्या रहेगा? नेगेटिव. तो याद रखिएगा कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमने हमेशा क्या लेना है इस फॉर्मूले में? नेगेटिव. उसके बाद अगर ये कनकेव मिरर है तो इसकी फोकल लेंथ भी लेफ्ट हैंड साइड पे होगी. यहां पर सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, मींस रेडियस ऑफ कर्वेचर भी क्या होगा? लेफ्ट हैंड साइड पर. तो कनकेव मिरर के लिए फोकल लेंथ नेगेटिव, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी क्या आएगा? नेगेटिव. ठीक है. अब व्हाट इज द साइन ऑफ द इमेज डिस्टेंस? दैट डिपेंड्स कि वेदर द इमेज बीइंग मेड इज रियल और वर्चुअल. ठीक है. रियल होंगी तो वो लेफ्ट हैंड साइड पे होंगी, वर्चुअल होंगी तो बिहाइंड द मिरर होंगी. वो कहां जाएंगी? बिहाइंड द मिरर. तो अगर आपकी v जो है वो नेगेटिव आता है, इस साइड पे अगर इमेज बनेगी तो v नेगेटिव आएगा, इस साइड पे इमेज बनेगी तो v पॉजिटिव आएगा. ऑब्वियसली अगर ये मिरर है और इस साइड पे इमेज बन रही है तो इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड. और अगर इस साइड है तो ये मिरर है और इस साइड पे इमेज बन रही है, बिहाइंड द मिरर बन रही है, तो ऑब्वियसली इट इज वर्चुअल एंड इरेक्ट. तो पहली ट्रिक तो आपकी यहीं से आ गई कि अगर आपको इमेज डिस्टेंस का साइन पता चल जाए तो आपको पता चल जाएगा व्हाट इज द नेचर. ठीक है. नाउ अगर मैंने कनकेव के बजाय अब कौन सा मिरर लिया? कॉन्वेक्स. कौन सा मिरर लेंगे हम? कॉन्वेक्स. इसको मैंने यहां पर, इसका ये पॉलिश सरफेस है, रिफ्लेक्शन यहां से होनी है. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो इसके लिए भी नेगेटिव रहेगा, बट इसकी फोकल लेंथ
or radius of curvature, because they are lying on the right side, so they will be positive. Radius of curvature क्या आएगा? Positive. और आपको पता है कि for convex mirror, image formed by convex mirror is always कौन सी होती है? वर्चुअल. तो इमेज डिस्टेंस इसमें हमेशा क्या रहेगा? पॉजिटिव. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो नेगेटिव रहना ही है, बिकॉज ऑब्जेक्ट हैज टू बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर. लेकिन इमेज डिस्टेंस इन केस ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर हमेशा क्या आएगी? पॉजिटिव. तो ये तो हुआ हमारा इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बारे में. व्हाट अबाउट द हाइट? ठीक है, व्हाट अबाउट द हाइट? अगर आपने इस एक्सिस पे सारे डिस्टेंस इस साइड नेगेटिव और इस साइड पॉजिटिव लिए हैं, तो ये ओरिजिन है. सारे डिस्टेंसेस अबव दिस पॉइंट आर टेकन एज पॉजिटिव and below it are taken as negative. ठीक? तो if the height of the object is above the principal axis, then it is taken as positive, and if the height is taken below the principal axis, it is taken as negative. So far you people now are in a position to distinguish between real and inverted and virtual and erect images. अगर इमेज इस तरह की बनती है, ठीक है, दिस इज वर्चुअल एंड इरेक्ट. एंड इमेज अगर इस तरीके से बनती है तो इट इज रियल एंड इन्वर्टेड. तो ट्रिक एक और बन गई आपके पास कि वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज में हाइट ऑफ द इमेज जो आएगी वो कैसी होगी? इज ऑलवेज पॉजिटिव. एंड रियल के केस में हाइट इज ऑलवेज नेगेटिव. तो आपके पास कुछ ट्रिक्स आ गई. ठीक है, तो इन ट्रिक्स का क्या फायदा होता है कि व्हेन यू आर सॉल्विंग अ न्यूमेरिकल एंड सपोज कि आपसे कोई गलती हो गई है, तो इफ यू नो दिस ट्रिक्स, आपको पता होगा कि ऐसा होना और आपका आंसर नहीं आया, तो आपको खुद ही आप खुद उस आंसर को चेक करोगे और देखोगे कि आपसे कहाँ गलती हो गई है, कहाँ पर आप साइन कन्वेंशन गलत लगा रहे हो, एंड यू पीपल विल बी एबल टू सॉल्व द न्यूमेरिकल करेक्टली आफ्टर यूजिंग दीज ट्रिक्स एंड हैक्स. ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगी मैग्निफिकेशन. ठीक है, क्योंकि साइज निकालने के लिए हमें एक फॉर्मूला यूज करना पड़ता है, एंड दैट इज मैग्निफिकेशन. व्हाट इज मैग्निफिकेशन? मैग्निफिकेशन बेसिकली आपको बताता है, मैग्निफिकेशन टेल्स अस द रेशियो ऑफ, इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट to the height of the image to the height of the object. ठीक है, तो मैग्निफिकेशन हो जाती है हाइट ऑफ द इमेज, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट. ठीक है, डेरिवेशन पार्ट आपको पूजा मैम करवाएंगी, अगर उन्होंने नहीं करवाया अभी तक तो इसका एक और फॉर्मूला आता है, दैट इज -v/u. ठीक है, तो दिस इज फॉर मैग्निफिकेशन. अब मैग्निफिकेशन बेसिकली होती क्या है, आई विल टेल यू कि मैग्निफिकेशन क्या होती है और कहां पर आपको मैग्निफिकेशन कैसे इस्तेमाल करनी है. मैग्निफिकेशन मीन्स, अगर मैंने आपको बोला वर्ड कि योर मैग्निफिकेशन इज 2, ठीक है, क्या बोला मैंने? 2. इट मीन्स कि height of the image upon height of the object is 2. It means height of the image is 2 times the height of object. अब यहां पर मैं दूसरा केस ले लेती हूं. मैंने बोला मैग्निफिकेशन इज 0.5. Then height of the image upon height of the object is 0.5. Then what is your height of image? 0.5 height of object. In both the cases, ये जो फैक्टर है, this magnification factor, actually it gives you the factor by which your image is magnified or diminished by a mirror. जो आपने मिरर यहां पर इस्तेमाल किया है, जब आपने वो मिरर लगाया उसमें जो इमेज प्रोड्यूस हुई, वो इमेज ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में कितनी मैग्निफाइड है या कितनी डिमिनिश्ड है. This factor magnification will tell you. Magnification is nothing but it is a number. It is a number which gives you
ये बताता है आपको कि जब आपने मिरर लगाया है तो मिरर लगाने के बाद जो आपकी इमेज आई है वो बड़ी आई है या छोटी आई है। इफ यहां पर देखिए, जब आपने बोला मैग्निफिकेशन इज 2, तो हाइट ऑफ द इमेज कितनी आई? ट्वाइस द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। सो इफ दिस इज योर हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो आपकी जो मैग्निफिकेशन के बाद इमेज आई, ये अगर आपका ऑब्जेक्ट है तो ये क्या बन गया? इमेज। तो इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट की साइज से डबल हो गई। नाउ ये क्या बताता है? ये बताता है कि अगर आपका मैग्निफिकेशन फैक्टर जो है वो 0.5 आता है, 1/2 मतलब आधा आता है, तो हाइट ऑफ द इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट के साइज के आधी हो जाती है। तो अगर आपका ऑब्जेक्ट ये था तो आपकी जो इमेज है वो आधी हो जाएगी। यहां पर इमेज आपकी एनलार्ज्ड आई और यहां पर आपकी इमेज जो आई वो डिमिनिश्ड आई। ठीक है, तो एक चीज आपको यहां से क्लियर हो गई कि इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ एम, मैग्नीट्यूड ऑफ एम का मतलब क्या हुआ? सिर्फ मैं अभी इसके साइन के बारे में बात नहीं कर रही हूं, अभी मैं पॉजिटिव और नेगेटिव भी बताऊंगी आपको। अभी आई एम जस्ट टेलिंग अबाउट यू द न्यूमेरिकल वैल्यू, द मैग्नीट्यूड। द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस मैग्निफिकेशन इज ग्रेटर देन 1, तो ऑब्वियसली आपकी इमेज जो बनेगी वो क्या होगी? एनलार्ज। यहां से प्रूव हो गया। एंड इफ इट इज लेस देन 1, इट इज डिमिनिश्ड। आई होप ये एक पॉइंट आपको क्लियर हुआ। ठीक है, नाउ आई विल टेक द केस ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ठीक है, सपोज m इज 2 एंड यहां पर मैंने ले लिया m इज -2। मैंने दो केसेस ले लिए। नाउ लेट्स सी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन the size of the image when the magnification is 2 and magnification is -2. यहां पर हमारा height of the image upon object is 2 and height of the image and height of the object is -2. ये क्या बताता है? It is 2ho and it is -2ho. ठीक है, इफ आई टेक ओनली द मैग्नीट्यूड पार्ट, सिर्फ मैग्नीट्यूड पार्ट लू तो पता चलता है कि हाइट ऑफ द इमेज जो है इट इज ट्वाइस द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। यहां पर भी मैं अगर सिर्फ कौन सा पार्ट लू? इमेज पार्ट लू, तो इट टेल्स अस कि हाइट ऑफ द इमेज इज ट्वाइस द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। बट यहां पर साइन इज पॉजिटिव एंड यहां पर साइन इज नेगेटिव। अब साइन पॉजिटिव और साइन नेगेटिव क्या बताता है? हाइट ऑफ द इमेज इज कमिंग पॉजिटिव, यानी कि इट इज अबव द प्रिंसिपल एक्सिस। Height of the image is coming negative, it means it is below the principal axis. तो positive and negative signs tells us about the nature of the image. क्या बताता है? Nature of the image. If now यहां से हमें पता चल गया कि अगर मैग्निफिकेशन मेरी क्या है? पॉजिटिव आती है तो कैसी इमेज बनी? इरेक्ट एंड वर्चुअल। इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। और यहां देखिए, अगर मेरी हाइट ऑफ द इमेज नेगेटिव आ रही है, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस, और ऐसी इमेज कौन सी होती है? रियल एंड इन्वर्टेड। तो एक और ट्रिक आपके पास आ गई। अब मैग्निफिकेशन, जस्ट बाय सीइंग द मैग्निफिकेशन, अगर आपको मैग्निफिकेशन फैक्टर पता है तो उसकी मैग्नीट्यूड और आप उसके साइन के बेसिस पे बता सकते हैं कि जो इमेज बन रही है उसका नेचर क्या है और इमेज का साइज बड़ा होगा या छोटा होगा। ठीक है, आई होप ये सब चीजें क्लियर हुई। जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो ये और आपको क्लैरिटी इन कॉन्सेप्ट्स की आती जाएगी। ठीक है, मैंने ये सारा आप लोगों के लिए लिख के रखा हुआ। So children, let's start our numericals. First of all, I have written here mirror formula to be used. 1 upon f is equal to 1 upon v plus 1 upon u, where v stands for image distance and u stands for object distance and f for focal length. ठीक है, before doing the numericals, एक चीज यहाँ पर हम जल्दी से recap करवा देती हूँ आपको मैं कि focal length for concave mirror, मैंने लिखा हुआ पीछे, फॉर कॉन्केव मिरर f इज नेगेटिव एंड फॉर कॉन्वेक्स मिरर f इज पॉजिटिव। ठीक है, तो चलिए, कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड फॉर रियर व्यू ऑफ एन ऑटोमोबाइल हैज अ radius of curvature 3 meter. If a bus is located at 5 meter from this mirror, find the position, nature and size of image.
तो चिल्ड्रन वी विल ड्रॉ द डायग्राम फॉर दिस. कुछ बुक्स में आप देखोगे डायग्राम नहीं दिया होता, दे डायरेक्टली सॉल्व द न्यूमेरिकल, बट मैं डायग्राम इसलिए ड्रॉ कर रही हूँ क्योंकि स्टार्टिंग में जब यू स्टार्ट डूइंग दीज न्यूमेरिकल्स तो आपको अभी इतनी क्लैरिटी नहीं होती. विद डायग्राम्स यू पीपल विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट मोर प्रॉपरली एंड क्लियरली. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मैं कॉन्वेक्स मिरर बनाऊंगी. छोटा सा डायग्राम आपने साइड पे बना लेना है. ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर आ गया. इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इस साइड है, तो ऑब्वियसली ये क्या रहेगा, पॉजिटिव. तो आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर आर क्या आया, +3 मीटर. ठीक है, बस इज लोकेटेड, यानी बस यहां पर है. कितना मीटर दूर है मिरर से, 5 मीटर. ठीक, तो आपका u आ गया -5 मीटर. मैं साइन कन्वेंशन साथ साथ में लेती जाऊंगी. अब यहां पर आप देखोगे कि आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर इज गिवन बट फोकल लेंथ इज नॉट गिवन, बट यू नो द रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ. So your focal length will be r/2. It will be equal to 3/2. आपके पास focal length आ गई, object distance आ गया. Now you have to find the v. हमें v find करना है. तो आपके पास 1/u + 1/v. यहां लगाइए आप. ठीक है, प्लस 1/v. इट एम्प्लॉयज, ये ऊपर चला जाएगा. तो आपके पास 1/v इधर ही रहा, ये इधर चला गया. क्या आया, 1/v इज 2/3 प्लस, तो मैंने यहाँ एलसीएम ले लिया. यहाँ पे आएगा मेरा 5/10 प्लस 3, 13/15. सो v विल बी 15/13 मीटर एंड इट इज 1.15 मीटर. आई होप. ठीक है, हमारा v निकल गया. v का साइन क्या आ रहा है, पॉजिटिव. v पॉजिटिव, ऑब्वियसली v. ये कॉन्वेक्स मिरर है, रियर व्यू मिरर में हम कॉन्वेक्स मिरर ही यूज करते हैं. तो इमेज कहाँ बनेगी, ऑन द अदर साइड ऑफ द मिरर. तो अदर साइड है तो वो पॉजिटिव होगा. ठीक है, आपको एक चीज और मैंने ट्रिक सिखाई है कि अगर v पॉजिटिव है तो mb क्या होगा, पॉजिटिव. इफ v इज पॉजिटिव तो mb क्या रहेगा हमारा, पॉजिटिव. ठीक है, तो देखते हैं वो m क्या आता है हमारा. m इज इक्वल टू -v/u, मैग्निफिकेशन माइनस, और u कितना है आपका यहाँ पर, u इज 5. ठीक, -5 इनफैक्ट. ये कट गया, ये आया 1/15/500. तो ये आ जाएगा, इससे मैं इसको काटू 0.23. तो मैग्निफिकेशन प्लस आई, तो प्लस आई है. तो आपको पता है कि अगर मैग्निफिकेशन प्लस आती है तो इमेज कौन सी बनती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट. वैसे भी कॉन्वेक्स मिरर है, हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज ही बननी है. तो आपकी पोजीशन निकल गई. पोजीशन के लिए हमारा आ गया 1.15 मीटर अवे. ठीक है, नेचर आ गया हमारा वर्चुअल एंड इरेक्ट. एंड साइज ऑफ द इमेज क्या आएगा, हाइट ऑफ द इमेज इज 0.23 टाइम्स द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो हम आंसर लिखेंगे, इमेज फॉर्म्ड विल बी virtual, erect and 0.23 times the size of the object at a distance. कितने डिस्टेंस पर, 1.15 मीटर behind the mirror. ठीक है, देखिए क्या किया मैंने, रेडियस ऑफ कर्वेचर u r का रिलेशन यहां से ये निकाला, फॉर्मूले में पुट किया, वैल्यू निकाली, v की वैल्यू निकली, मैग्निफिकेशन में डाली, मैग्निफिकेशन निकली. मैग्निफिकेशन बताती है कि इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज से कितना बड़ा या छोटा होगा. अगर पॉजिटिव साइन आता है मिरर के केस में इमेज डिस्टेंस का, तो ये बताता है कि इमेज हमेशा दूसरी साइड बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी. हाइट जो है अगर पॉजिटिव आती है तो वर्चुअल एंड इरेक्ट, अगर नेगेटिव आती है तो रियल एंड इन्वर्टेड. ठीक है, सो सेकेंड न्यूमेरिकल इज concave mirror produces 3 times magnified enlarged real image of an object placed at 10 centimeter in front of it. Where is image located? यहां पर एक चीज का ध्यान रखिए,
रियल इमेज है तो आपको पता है रियल इमेज के लिए जो मैग्निफिकेशन आती है दैट इज नेगेटिव। तो मैं यहां लिखूंगी फॉर रियल इमेज m इज नेगेटिव। ठीक है, तो यहां पर आपके पास आ गया मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला पहला, m इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू। आपने यहाँ मैग्निफिकेशन में हमें v की वैल्यू नहीं पता, u की वैल्यू पता है, दैट इज माइनस ऑफ 10 सेंटीमीटर इस साइड पे रखा है, तो ये यहाँ पे आएगा। m का फॉर्मूला m निकल गया v बाय 10, बट m इज इक्वल टू हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट इज -3। हाइट ऑफ द इमेज इज -3 टाइम्स हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर ये v बाय 10 इज इक्वल टू -3, तो v मेरा कितना आएगा -30 सेंटीमीटर। और आपको पता है कॉनकेव मिरर है तो इमेज जो है सिर्फ एक केस को छोड़ के बाकी सभी के लिए रियल इमेज बनती है, तो वो इसी साइड लेफ्ट हैंड साइड पे बनेगी। तो ये हमारा न्यूमेरिकल यहाँ पर सॉल्व हो गया। बस यही निकालना था। अगर आपको इसमें नेचर तो पूछेंगे नहीं क्योंकि नेचर ऑलरेडी दिया हुआ है, पोजीशन पूछी है, साइज पूछेंगे नहीं, साइज ऑलरेडी इसके अंदर उन्होंने पहले से डिस्कस किया है कि साइज 3 टाइम्स है। तो ऐसा क्वेश्चन भी आपको आ सकता है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया, बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना और क्वेश्चन में ही सब इन्फॉर्मेशन छुपी होती है, वहां से आपने इन्फॉर्मेशन ड्रॉ करनी है और उसी के बेसिस पे आपने अपना डायग्राम बनाना है और कैलकुलेशंस करनी है। जो फॉर्मूले आपने अभी तक पढ़े हैं उसको आपने इस्तेमाल करना है। लेट्स कम टू आवर थर्ड प्रॉब्लम। थर्ड प्रॉब्लम इज an object of size 7 centimeter is placed at 27 centimeter in front of a concave mirror। फिर से मैं क्या बनाऊंगी, छोटा सा डायग्राम बनाएंगे हम। ये मैंने बनाया कॉनकेव मिरर। ठीक है, हाइट ऑब्जेक्ट की दे रखी है, हाइट कितनी दी है इसकी 7 सेंटीमीटर। कितने डिस्टेंस पे रखा है 27 सेंटीमीटर पे। एंड व्हाट डिस्टेंस, एट व्हाट डिस्टेंस, अच्छा फोकल लेंथ दे रखी है 18 सेंटीमीटर। तो आपकी f जो है वो भी आ गई कितनी 18 सेंटीमीटर। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम मिरर शुड a screen be placed so that a sharp image is formed on it। ठीक है, तो आपने v निकालना है। सबसे पहले मैं जो दिया हुआ है वो लिखूंगी। u is given as -27 सेंटीमीटर, height is equal to 7 centimeter and focal length is equal to -18 centimeter। with sign conventions ही मैं लिखूंगी ताकि मुझे गलती ना लगे। ठीक है, now we have to find v, we have to find ये object दिया है, size and nature, we have to find height of the image and we have to find the obviously the nature। अब using mirror formula हमारे पास आया। ठीक है, मैं f की जगह f की वैल्यू लगाऊंगी, u की जगह u की वैल्यू लगाऊंगी और v तो हमें निकालना है। तो मेरे पास आ गया, ठीक, इसको मैं लेके गई हूं, इसका साइन चेंज होगा। एलसीएम आ गया 54, यहां आया -3, यहां आया +2, मेरा आंसर आया -1/54। इट इम्प्लॉयज मेरा v कितना निकल रहा है -54 सेंटीमीटर। ठीक है, -54 सेंटीमीटर मेरा इमेज डिस्टेंस निकल गया। तो ये बात माइनस साइन से पता चल गई कि इस साइड आएगा। ठीक है, अब माइनस साइन है, इस साइड आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड पे बन रहा है, कनकेव मिरर है, तो एक चीज तो हमें पता चल गई कि ये कौन, तो हमारा v निकल गया -54 सेंटीमीटर। तो एक चीज हमें पता चल गई कि v अगर माइनस है तो ये लेफ्ट हैंड साइड पे और इमेज कौन सी बन रही है, रियल बन रही है। ठीक है, वो वैसे भी हमें पता थी। अब उसके बाद हमने निकालना है साइज। तो साइज निकालने के लिए हम लोग मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लिखेंगे। मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू -v/u। तो माइनस और v की जगह आ गया -54, u की जगह आ गया -27, माइनस माइनस कैंसल, आंसर इज -2। एंड मैग्निफिकेशन अगर -2 है, माइनस है, तो मैंने आपको बताया था माइनस अगर आती है मैग्निफिकेशन, इट मीन्स इमेजेस रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, नाउ व्हाट इज द साइज, इसका एक फॉर्मूला ये भी है। इट मीन्स हाइट ऑफ द इमेज इज
2 टाइम्स द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो हाइट ऑफ द इमेज आपकी कितनी आएगी? आपका ऑब्जेक्ट था 7 सेंटीमीटर का, तो हाइट कितनी आई? 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर साइज है, मैग्नीफाई हो रही है, लेकिन उसी के साथ साथ है नेचर क्या है? रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। आप इसमें माइनस साइन भी यहां पर ले सकते हैं। हाइट इज -14 सेंटीमीटर, इसका मतलब क्या हुआ कि हाइट -14 सेंटीमीटर ये बता रही है कि ये इन्वर्टेड इमेज है। ठीक है, मैंने आई होप आपको ये सारे न्यूमेरिकल समझ आ गए होंगे। मैंने आपकी प्रैक्टिस के लिए भी कुछ न्यूमेरिकल्स दिए हैं, 3 न्यूमेरिकल मैं आपको एज अ प्रैक्टिस वर्क दे रही हूँ। आप लोग जो मैंने पढ़ाया है इसी के बेसिस पे वो न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आएगी तो विल डू इट नेक्स्ट टाइम। So that is all what I had for you today. Thank you. Have a nice day. Stay home, stay safe.